Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fine and you are listening to the instruction given by your parents. So, student, be safe at home. So, in my previous video, student, I explained you what are three forms of water, that is solid, liquid and gas. Water is in these three forms: solid, liquid, gas. So student, when you are watching my video, please take one rough copy and one pencil, and if you are unable to understand anything, so you can note down when you are watching the video, and next day in online classes, in your doubt session, you can ask with me. Is it clear? Now all of you open your book, page number 46. Name of the chapter, that is chapter 10, A Water, a Wonderful Liquid. Open page number 46. Okay, open page number 46. Now see student, water, a wonderful liquid. So I am doing the reading, and after that you put fingers on the words which I am reading. See in your book, page number 46, a wonderful liquid. Our earth is called a blue planet. 72%, or you can say 3/4 surface of earth is covered with water. Water is essential not only for everyday activities but also for the existence of life. Our day begins with the use of water. Okay? So now student, after that, sources of water. Water is a liquid that exists in the three states of matter, that is solid, liquid, gas. A large amount of water is present in the form of ice caps on mountains and glaciers. These ice caps, glacier, melts due to the heat of the sun. These form rivers which flow into the oceans. The air also contains water in the form of a water vapor. Now see student, I have done the reading of 2 paragraphs. Now let's do little recapitulation what we have done in the, what I teach you in the previous video, then I explain the other things. Is it clear? See, water is in three forms, that is solid, liquid, and third is gas. Okay, so student, the original form which I told you in my previous video also, the original form of water is liquid. How water change in solid and how water change in gas. So these two process
I explain you, just recapitulation of this I will do, and then I will continue with the new topic. Solid. This is the original form of water. This is the original form of water. Now first I have written solid, and then third I have written gas. So when we cool the water by freezing, the water change into a solid form, and that is known as ice. That is known as ice. Simply, you have seen this, and even I told you also that you can take the help of your mother also. Ask your mother, keep some water inside the refrigerator, freezer, and after 2-3 hours when you observe this water, then this water change into a form of a, then that water become solid. Is it clear? And this form is known as ice. So, and another, this is done by cooling. Is it clear? And another one is done by heating. By heating. Okay? By heating. So when you heat the water, then what's happened? The boiling point of water is 100 degrees Celsius. So after that, the water start changing in the form of a vapor, and that is known as water. That is known as water vapor. Okay, so three forms of water are solid, liquid, and gas. Original form is liquid. Solid form, when the water is very cool, you freeze it, then it change into a solid form. Okay, and when you heat the water by sunlight, or you warm it with wood hai, coal hai, LPG gas hai, which your mother use in the kitchen, then also the water change in the form of a vapor. That is known as gas form of water is water vapor. This thing we have already discussed in our previous video. Now see student, now let understand why we say that all these three forms we have already discussed. Now student, try to understand. In the beginning, when I am doing the reading of the chapter, at that time I told you 72% is water. We are living on which planet, student? We are living on Earth. We are living on planet Earth. Okay, and 72% we are living on planet Earth, and 72% Earth is covered with water. 72% the Earth is covered with water. See student, when the teacher told this thing that student 72%, for example this is your Earth, for example this is Earth, and when the teacher told you that 72% of the Earth is covered with water, तो बच्चों को बहुत सरप्राइज लगता है, इतना ज़्यादा वाटर कहाँ? क्यों? क्योंकि आप हमेशा क्या देखते हो, अपने इन जस्ट सराउंडिंग्स में देखते होगे, ठीक है, रोज डेली स्कूल्स आते होगे या वेकेशंस में इधर उधर जाते होगे, तो आप ये देखते होगे
चारों तरफ आपको लैंड ही लैंड दिखता है, ठीक है। तो आप छोटे हो तो आपको ये लगता होगा कि सर तो बोल रहे थे अर्थ का 72% पोर्शन वाटर ही वाटर है, तो ये वाटर गया कहाँ? क्योंकि बहुत सी सिटीज ऐसी हैं जहाँ रिवर नहीं भी हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग, ये इट इज सरप्राइजिंग फॉर यू। द फैक्ट इज कि 72% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। सो आई विल एक्सप्लेन यू so that now you are able to understand why this line is given in the book that 72% of the earth is covered with water. See student, what are the water bodies in which you see the water? Maybe you see water in the pond, lake, river, sea, ocean, even in the rainy day you see lot of water, lot of land is submerged in water. रेनी डेज में तुम लोग देखते होगे कि बहुत सा लैंड जो है पानी में डूब जाता है, ऐसा होता है ना। रेनी डेज में भी बहुत वाटर होता है और जो लैंड है आपके खेलने के जो ग्राउंड है यू आर अनएबल टू प्ले देयर, क्योंकि क्या होता है वो सारा पानी से क्या होता है कवर हो जाता है। इज इट क्लियर? तो मैक्सिमम तुमने क्या पढ़ा कि तुमने पाउंड, लेक, रिवर, सी, ओशन, या इवन यू कैन टॉक अबाउट द अंडरग्राउंड वाटर आल्सो। अंडरग्राउंड वाटर किस में होता है? वेल में होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, ओल्ड टाइम में लोग जब टैप्स नहीं हुआ करते थे, नल नहीं होते थे, तो ड्रिंकिंग वाटर किसका यूज करते थे? वेल का यूज करते थे। इज इट क्लियर? कुओं से पानी निकाला करते थे। तो जनरली आपको लगता है कि वाटर बॉडीज यही हैं, और हर जगह तो हमको रिवर देखने को मिलती नहीं है, हर जगह ओशन भी देखने को नहीं मिलते हैं, है ना। फिर कहाँ ये इतना 72% वाटर हो गया? सो स्टूडेंट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज अ वेरी सिंपल। See this, the name which I have written on the board, that is all are water bodies: pond, lake, river, sea, ocean, underground water that you will see in the well. These, and even in the rainy season you see lot of water on the ground. So student, when you see up, then what you will observe? आपको लगता है ना स्काई है, ठीक है। तो ये जो स्काई में जो क्लाउड्स हैं, व्हाट आर दीज क्लाउड्स? व्हाट आर दीज? ये भी वाटर ही है, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि वाटर क्यों 72% है, ठीक है। व्हेन यू सी द स्काई यू विल सी लॉट ऑफ क्लाउड्स, ओके। तो व्हाट आर दीज क्लाउड्स? These clouds are also water, okay. These clouds are also water. What is in the cloud? Clouds are full of water, and this explanation here just I give you that the clouds are made of water. And when I will teach you water cycle, then how the water drops make the clouds, that I will tell you in when I will teach you water cycle. So just understand this. अब तुम्हें लग रहा होगा ना कि अब देखो मैं जहाँ जहाँ वाटर छुपा हुआ है मैं वहाँ से निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको पता चले कि वाकई 72% या अर्थ का 3rd and 4th पार्ट लिखा है ना आपकी बुक में, 3/4 सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। अगर मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसे आप पढ़ोगे तो अगर हम एक सर्किल बनाते हैं, आई ड्रॉ वन सर्किल एंड आई डिवाइड द सर्किल इनटू 4 पार्ट, ठीक है। काउंट कर लो, 1 2 3 4, ओके। नाउ इफ आई हैव टू राइट द फ्रैक्शन फॉर दिस, फ्रैक्शन में क्या होता है, 1 नंबर इज रिटन अबव द लाइन, जिसे न्यूमरेटर बोलते हैं, एंड द 1 नंबर विच इज रिटन बिलो द लाइन, that we say denominator, that we say denominator,
Okay, is it clear? So 1/3 is covered with water. तो हम इसके 3 पार्ट्स को क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं. कोई भी 3 पार्ट्स को, ये कर दिया, ये पार्ट कर दिया और ये पार्ट कर दिया. क्या कर दिया, कलर कर दिया. So how we write a fraction? The number which is written above the line, student, that is known as numerator, and the number which is written below the line, that is known as denominator. So what does denominator say? Denominator क्या बोलता है कि whole picture, एक पिक्चर थी, for example this is a circle, I draw one vertical line and then one horizontal line, and the same circle is divided into 1, 2, 3, 4 parts. So denominator say that whole is divided into how many parts? So count the number of parts. 1, 2, 3, 4. So I will write here 4. Now what does the numerator say? Numerator बोलता है टोटल जितने पार्ट्स हैं उसमें से कितनों को हम कंसीडर कर रहे हैं. कंसीडर कितनों को कर रहे हैं, देखो स्टूडेंट, इन दिस पिक्चर वी हैव 4 पार्ट, 1, 2, 3, 4. आउट ऑफ दिस 4 पार्ट हाउ मेनी पार्ट आई हैव कलर? 4 में से कितने पार्ट्स बेटा मैंने कलर किए? काउंट करो. 1 पार्ट किया, 2 और 3, मीन्स आउट ऑफ 4 मैंने कितने पार्ट्स कलर किए? 3. सो इट बिकम 3. तो दैट इज गिवन. अर्थ में कितना वाटर है? यू कैन से 72%. अगर परसेंट में आप समझ रहे हो तो 72% है. एंड 3/4, हाउ 3/4 इट विल कम, दैट आई एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. आ गया समझ में? क्योंकि डिनोमिनेटर बोलता है होल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट. तो 1, 2, 3, 4. सो एट डिनोमिनेटर प्लेस डिनोमिनेटर the number which is written below the line. I have written 4, and out of 4 I am considering only 3. 1, 2, 3. So I write here 3. So in the percentage you can say 72%, and in the fraction the same thing you will say that 3/4 part of the earth is covered with a water. So I think, I hope you understand both the meaning. In percentage 72% and 3/4. What is 3/4? I hope you all are able to understand what is 3/4 of the earth. It means that student only one part is left which is covered with land, which have only this much portion have land, other all the portion is water. That I am explaining you here. कि where you, what are the water bodies? वेयर यू सी द वाटर, वो कौन वाटर बॉडीज है जहां आपको वाटर देखने को मिलता है? पाउंड, लेक, रिवर, सी, ओशंस, अंडरग्राउंड वाटर, जैसे मैंने बोला वेल. इज इट क्लियर? फिर नेक्स्ट मैंने आपसे बात की क्लाउड्स. व्हेन यू सी द स्काई, जब आप स्काई देखते हो, द स्काई में आपको बहुत क्लाउड्स हैं, पूरे ये क्लाउड्स हैं. तो व्हाट इज दिस? ये क्लाउड्स क्या है? दिस इज आल्सो ए वाटर. Okay, so in the water cycle I will explain you, but here just you put in your mind what is a cloud made of. Is it clear? Just put in your mind what is a cloud made of. So cloud is made of a water. Cloud is made of a water. Now if someone asks you these clouds are made of what? So these clouds are made of water. अब देखो इतने ज्यादा क्लाउड है, ये सब वाटर है. अब देखो वाटर, अब लग रहा है ना वाटर वाकई बहुत ज्यादा है. अब सारा वाटर अभी मैंने नहीं बता दिया, अभी और है. जस्ट लिसन. ये वाटर बॉडीज थी, क्लाउड्स की बात कर ली. अब देखो माउंटेन्स पे चलते हैं. माउंटेन्स पे जो सबसे ज्यादा हाइट वाले माउंटेन हैं उन्हें हिमाद्री बोलते हैं. जस्ट ये मैं नाम बता दे रहा हूँ क्योंकि व्हेन यू कम इन क्लास 5 then your teacher will give you explanation mountain ranges की. ठीक है, बस आप ये समझ लो कि जो बहुत ऊंचे पहाड़ होते हैं, बहुत ऊंचे, सबसे हाइट वाले पहाड़, उनके जो वो किससे कवर होते हैं? स्नो से कवर होते हैं. किससे कवर होते हैं बेटा? स्नो से कवर होते हैं. आपने देखा है
अगर आप कश्मीर की तरफ गए होगे या जम्मू कश्मीर, हिमाचल में, आप इफ़ यू कभी आप एज ए टूरिस्ट गए होगे वहाँ, तो आपको बर्फ़ के पहाड़ भी दिखेंगे, जैसे लगेगा पूरे वाइट हैं। ओके, इट शाइन ड्यू टू सनलाइट। जब सनलाइट पड़ती है स्नो पे तो वो शाइन करते हैं, जैसे लगते हैं पूरे बर्फ के वाइट माउंटेन्स यू आर एबल टू सी। तो व्हाट इज स्नो, जो कि मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था एग्जांपल लेके। you take 2-3 pieces of ice from the refrigerator and then you put that pieces on the table. After some time you will see that they will melt बन के वो क्या बन जाएंगे, लिक्विड्स बन जाएंगे। मेल्ट करके क्या बन जाएंगे, लिक्विड्स बन जाएंगे। तो और वाटर कहाँ आया, क्लाउड्स में। माउंटेन्स जहाँ टेम्परेचर, वेयर द टेम्परेचर इज वेरी वेरी लेस, माइनस में टेम्परेचर चलता है, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो सारे माउंटेन्स जो व्हाइट माउंटेन्स में स्नो वाले दिख रहे हैं, तो रियल में ये क्या है, ये भी वाटर ही है। देयर आर मेनी रिवर्स विच आर फॉर्म ड्यू टू दीज माउंटेन्स आइस या माउंटेन्स स्नो, क्योंकि जब सनलाइट से, क्योंकि व्हेन due to the light of the sun, when the snow melt then it change into which form, liquid, that is water। और इसी लिक्विड से क्या बनती हैं आपकी रिवर्स। मेल्टिंग ऑफ स्नो से क्या बनता है बेटा, आपका रिवर्स बनते हैं। मेल्टिंग ऑफ स्नो से आपका क्या बनता है बेटा, रिवर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, रिवर। तो अब आपको पता चला ये भी क्या है, जो माउंटेन्स में आपको पूरा व्हाइट व्हाइट दिखता है, स्नो दिखती है, वो भी क्या है, वाटर है। ग्लेशियर्स के बारे में आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड होती है, ठीक है, वाटर जो है फ्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इज सो लेस दैट द वाटर चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए आइस। सो व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो व्हाट, वाटर। तो दैट इज अ रीजन स्टूडेंट वी से 72% ऑफ द अर्थ, जो हमारा प्लेनेट है, इट इज कवर्ड विद वाटर, और in fraction you can say 3/4। I hope that why we say the earth is called a blue planet, ठीक है। तो that is the reason, सबसे ज्यादा अर्थ क्या है, अर्थ में क्या है, वाटर ही है, इसीलिए अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, ब्लू प्लैनेट। नाउ आई थिंक ऑल ऑफ यू आर एबल टू understand why we say our earth as a blue planet। ओके, सो स्मॉल रिकैप्चुलेशन इसकी कर देता हूं। वाटर मैंने कहां कहां से आपको दिखाया, पाउंड, लेक, रिवर, सी, ओशन, अंडरग्राउंड वाटर दैट इज इन ए वेल, these are the different water bodies which you see on the earth। and another thing is that all the clouds, जो आपको स्काई दिखती है, all the clouds, this is also made of water। and all the rivers, ये जितनी भी आपको रिवर्स है, रिवर्स में जो वाटर होता है that is due to the melting of the snow। melting मतलब पानी किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में। जब स्नो मेल्ट करती है तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। मेल्ट करना मतलब पिघलना, ठीक है, वो मेल्ट होके फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म लिक्विड में आ जाता है, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ स्नो से रिवर्स बनती है। ये जो रिवर में जो वाटर होता है, ये मेल्टिंग ऑफ स्नो से होता है। तो जितने भी तुम्हारे सबसे ज्यादा हाइट वाले माउंटेन्स हैं which look totally white, so what is this white, this is a snow। and when it melts, जब वो भी मेल्ट करेगी तो वो भी किस फॉर्म में चेंज होगी, वाटर के ही फॉर्म में चेंज होगी। इज इट क्लियर। ग्लेशियर्स हैं इतने बड़े बड़े, वो भी सारे स्नो से भरे हैं। इफ दे मेल्ट देन दे आल्सो चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर ऑल द इतने ज्यादा जो आइस फॉर्म में जो वाटर है, ये सारा मेल्ट हो जाए तो पूरी अर्थ डूब जाएगी। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग।
कभी सुना है न्यूज में बादल फट गया? सो दिस थिंग हैपन्स इन विच एरिया, एकदम फ्लड सा आ जाता है, बाढ़ सी आ जाती है, इतना पानी गिरता है। इज इट क्लियर? सो इतना वाटर डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। वाटर इज इन द एयर आल्सो। अब एक चीज तो भूल गया था बताना, वाटर इज इन द एयर आल्सो। एयर में किस फॉर्म में है वाटर? वाटर वेपर फॉर्म में। किस फॉर्म में है वाटर? वाटर water vapor. So water is in the air also. जब वाटर सनलाइट से हीट होता है, जस्ट आई टेल यू, व्हेन द ड्यू टू द हीट ऑफ द सनलाइट वाटर स्टार्ट इवापोरेट एंड इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए गैस। सो ये जो वाटर वेपर है, जो हमारे चारों तरफ क्या है, एयर ही एयर है, तो एयर में भी वाटर वेपर मिक्स सकते हैं, एयर में भी वाटर है। इज इट क्लियर? इन विच फॉर्म? वाटर फॉर्म। सोच लो, तो वाटर हुआ ना बेटा 72%। नाउ आई होप यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड हाउ 72% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, एंड दैट इज द रीजन वी से इट एज ए ब्लू प्लैनेट। दैट इज द रीजन वी से इट एज ए ब्लू planet. Now next, sources of water I discuss with you, and what are mountain, it is the snow on the mountain peaks, जो हाइट वाले माउंटेन है उनकी चोटियों पे जो बर्फ है, और ग्लेशियर्स हैं उसमें भी पूरी क्या है, स्नो ही है। इज इट क्लियर? और वाटर एयर में भी है in the form of a water vapor. So where the water is present on the earth in different forms. इसीलिए मैंने स्टार्ट किया था सॉलिड लिक्विड गैस से, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है तुम वाटर की डिफरेंट फॉर्म को समझो। अगर तुम्हें ये क्लियर हो गया, दैट इज द रीजन अर्थ में 72% वाटर कैसे है, ये मैंने बाद में आपको बताया। पहले मैंने 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आपको बताई, जिससे आपको समझ में आए कि ये जो सॉलिड है ना आइस, ये भी ओरिजिनल मेल्ट करेगा तो वाटर ही होगा। एंड द वाटर वेपर, ये जो सॉलिड फॉर्म गैसियस फॉर्म है वाटर वेपर, जब ये कूल होगा, जैसे आपने देखा होगा आपकी मदर इफ शी इज कुकिंग फूड, व्हेन शी इज गिविंग द हीट, तो तुम देखे होगे स्टीम, वाइट स्टीम आपको देख, यू आर एबल टू सी, बट व्हेन शी स्टॉप हीटिंग द वाटर एंड दैट इज यूटेंसिल इज कवर, जो भी बर्तन है जिसमें वो उस वाटर को गर्म कर रहे हैं, उसे प्लेट से कवर कर रखा है आपकी मम्मी ने, तो व्हेन शी स्टॉप हीटिंग द वाटर आफ्टर सम टाइम, यू विल ऑब्जर्व स्टूडेंट, उस प्लेट को हल्का सा आप उसे हटाना यूटेंसिल्स के ऊपर से, आपको दिखेगा सारी प्लेट में पूरी टॉप की तरफ छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स होंगे। तो ये वाटर के जो ड्रॉप्स हैं, ये ड्रॉप्स ऑफ वाटर, छोटे छोटे वाटर के ये ड्रॉप्स कैसे बने? व्हेन योर मदर इज हीटिंग द वाटर, इट चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वेपर, बट व्हेन शी स्टॉप हीटिंग, देन व्हाट हैपन? व्हेन द वाटर वेपर कूल, जब वाटर वेपर कूल हुए तो अगेन दे चेंज सम small drops of liquid you will able to see. Okay, so I hope you all are able to understand why earth is known as blue planet, what are the 3 forms of the water, and now in the next video I explain you there are 2 activities which are given in your book student, and because both activity after that 2 definitions which are very important for your understanding, that is what is evaporation and what is condensation, because whole water cycle depends on these 2 processes, that is evaporation and condensation. So have a reading of this, and when you watch my video on the date 9, in that video I give you the explanation
what is evaporation and condensation. So you have just read it. Thank you student and have a nice day.